गुड मॉर्निंग इंडिया फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूच बिहार में हुई हिंसा पर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। सिलीगुड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि निर्वाचन आयोग तथ्यों को दबाने की कोशिश कर रहा है। शीतलकुची में ग्रामीणों पर बंदूकें तानी गई, ये नरसंहार है। সবকিছু নির্বাচন কমিশনকে আমি রেসপেক্ট করি, কিন্তু সব নিয়ম তো বদলে দেওয়া যায়নি। বা একটা পার্টির ইন্টারেস্টে চেঞ্জিং দ্য অল দ্য সিস্টেমস ক্যানট বি চেঞ্জ। দ্য ইনস্টিটিউশন উইল কন্টিনিউ ফর এভার and the system is to be maintained as per our election rules and all. Yes, they can do anything and everything, but there must be something very essential, that what is called democracy, what is called free and fair election, what is the impartial election, everybody wants that. আমি আরেকটা কথা আপনাদের বলি, নির্বাচন কমিশনকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যা ঘটনা ঘটাচ্ছে প্রতিদিন নজিরবিহীন। ইভেন আমাকে যেতে দেওয়া হলো না শীতলকুচিতে, আমি দুঃখী পরিবারগুলোর সাথে একটু দেখা করবো বলে, তাদের পরিবারগুলোর কাছে পাশে দাঁড়াবো বলে। আপনারা জানেন আমি শুধু নির্বাচন করি না, আমি অন্য সময় 365 দিনও মানুষ বিপদে পড়লে তার পাশে আসি। এবং শুধু তাই নয়, আমি পাশে আছি বলে দেখবেন কার্শিয়াল কালিম্পং থেকে শুরু করে ইভেন ভূমিকম্প হয়েছে, সেখানেও কিন্তু আমি ছুটে এসেছি। এমন কোনো ঘটনা নেই যেখানে আমি আসিনি বড় ঘটনা। সুতরাং আমি যেতে চেয়েছিলাম, 72 ঘন্টা আটকে দেওয়া হলো, আমি 14 তারিখ তার সাথে দেখা করবো। 72 ঘন্টা আটকে দিয়েছে, ওকে আই বি ওয়েটিং ফর দ্যাট 72 আওয়ার্স অনলি বিকজ অফ দ্য এমসিসি। দো আই থিঙ্ক দ্যাট এমসিসিটা এখন হয়ে গেছে বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট, বিসিসি। এটা এখন বিজেপি কোড অফ কন্ডাক্ট হয়ে গেছে, তারা যা বলছে তাই করছে। আর 24 ঘন্টা ইলেকশনে প্রচার করতে দেবে না কেন? যেহেতু বিজেপির ইলেকশন প্রচার 13 লাস্ট ডেট, তাদের 13 পর্যন্ত প্রচার আছে নর্থ বেঙ্গলে, তাই তারা আমাকে প্রচার করতে দেবে না বলে তারা কেন এসব করবে? আমি তো 14 পর্যন্ত আমার প্রোগ্রাম আছে, আমি আশা করি 14 আপ টু 6 o'clock, এটা 72 আওয়ার্স আগে পর্যন্ত হবে। আমি 13 আবার আসছি নর্থ বেঙ্গলে, 14 তারিখে আমার লাস্ট প্রচার হবে নর্থ বেঙ্গলে, এবং আমি ওই প্রচারে যাওয়ার আগে বা পরে কোনো একটা সময় আমি পরিবারগুলোর সাথে আমি দেখা করে নেব। কারণ এইভাবে আমাকে আটকানো যাবে না, এটা মাথায় রাখবেন। এই লড়াই মনে রাখবেন শুধু আমার একার লড়াই নয়, এই লড়াই আপনার আমার সবার লড়াই, এবং এই লড়াইতে আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমি প্রার্থনা করি। আর একটা বলি সাথে সাথে, যে আমাদের ছেলে মেয়েরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে তারা নিজেদের থেকে তারা প্রত্যেকে 100 টাকা করে দেবেন, দিয়ে আমরা একটা ফান্ড তৈরি করবো, এবং সেই ফান্ডটা তৈরি করে আফটার ইলেকশন, যেহেতু ওই জায়গাটা ইলেকশন হয়নি, আমরা গভর্নমেন্টের 2 টাকা মনে হয় কালকে অ্যানাউন্স করেছে নাকি? গভর্নমেন্টকে অ্যানাউন্স করছে গভর্নমেন্টকে অ্যানাউন্স করছে 70 বলে দেওয়া হয়েছে, যার একটা পারমিশন চাওয়া হয়েছে স্পেশালি। এখন তো সব কিছুরই পারমিশন চাইতে হয়, লোককে মরে গেলে তখন পরিবারকে সাহায্য করতে গেলেও পারমিশন চাইতে হয়। তাই ওদের সাথে কথা হয়ে গেছে, ওরা অ্যানাউন্স করবে গভর্নমেন্টের থেকে, যেটা পাঁচ করে ওরা একটা দেওয়ার কোনো একটা ব্যাপার, একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করছে, সেটা আপনাদের বলে দেবেন। প্লাস আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে, যেমন আমার নিজের খুব ফিলিংস হচ্ছে, এটা আমি কোড অফ কন্ডাক্ট ভাঙবো না আশা করি, কারণ আমার তো ভোট অ্যাকাউন্টে একটা টাকা আছে, যে টাকাটার মধ্যে আমি ভোটটা করতে পারি। আমার ভোটের লিমিটেশন, ভোটের সিলিং এর মধ্যে আমার যে টাকাটা বাঁচবে, ভোটের সিলিং এর মধ্যে খরচা করে আমি অ্যাজ এ ক্যান্ডিডেট আমার যে টাকাটা বাঁচবে, আমি সেই টাকাটাই পরিবারকে দিই। এবং যারা গুলি খেয়েছে তাদের অনেকে হসপিটালে আছে। ইটস এ জেনোসাইড। ওয়াই ইটস এ জেনোসাইড? দেখবেন গুলিগুলোকে স্প্রে করেছে। গুলি করতে হলে তুমি নিচে পড়বে, কোমরের নিচে কতগুলো সিস্টেম আছে, প্রত্যেকটা গুলি গলায় অথবা বুকে লেগেছে। 3টে কেস তো আমি দেখেছি, যেটা হচ্ছে গুলি হয় গলায়, নয় বুকে লেগেছে, জাস্ট স্প্রে করেছে মনে হচ্ছে গুলি। এবং সিআইএসএ তাদের কাজ কি? তারা জানে না হাউ টু কন্ট্রোল দ্য মব। দ্য প্রবলেম ইজ CISA has no role to play about the controlling mob, because they are specially sensitized for the industrial area. But instead of industrial area, they are being deployed because of this control the public, and they are not trained for that. They are not trained for that. Very unfortunate things. And after that, they want to suppress the facts. That's why they said 72 hours you cannot go. Okay, when the election is not there, there I can go. When the election is already over, why can't I go? What is this system? You will kill the people, and after that I cannot meet the people. I cannot even sympathize to the people. What is this? I am really
बंगाल में सियासी गहमागहमी के साथ कोरोना वायरस का प्रकोप भी बढ़ रहा है। बीते 30 दिनों में राज्य में रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या 15 गुना बढ़ गई है। वहीं एक्टिव केस भी 7 गुना बढ़ गए हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर स्थित चांदा इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर शनिवार देर रात अचानक से एक ट्रक में आग लग गई। आग के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। घटना के बाद दमकल विभाग अधिकारी एक इंजन के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। बीरभूम में डबराजपुर से भाजपा उम्मीदवार अनूप शाह की गाड़ी पर हमला हुआ है। इस घटना का आरोप तृणमूल पर लगा है। सुरक्षा बलों के घेराव करने के बयान पर आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का ममता ने जवाब दे दिया है। ममता ने कहा है कि मैं सुरक्षा बलों का पूरा सम्मान करती हूं। 6 अप्रैल को तारकेश्वर में एक नाबालिगा के यौन शोषण के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। न ही आयोग ने सुरक्षा बलों को ऐसी घटनाओं से दूर रहने की हिदायत दी है। जिस बयान को लेकर मुझे नोटिस दी गई है उसमें कहा गया है कि यदि सुरक्षा बल मतदान में बाधा पहुंचाते हैं तो महिलाओं का एक गुट उनके घेराव करे और दूसरा मतदान करे। जिस बयान को लेकर मुझे नोटिस दी गई है उसमें कहा है कि यदि सुरक्षा बल मतदान में बाधा पहुंचाते हैं तो महिलाओं का एक गुट उनका घेराव करे और दूसरा मतदान करे, ताकि मतदान करने से रोकने की भाजपा की साजिश सफल नहीं हो पाए। ओडिशा के मयूरभंज में एक हाथी को रेस्क्यू किया गया। दरअसल हाथियों का एक झुंड घने जंगल के पार एक गांव में घुस गया तो झुंड के साथ चल रहा हाथी का छोटा बच्चा कुएं में गिर गया। झुंड तो आगे निकल गया लेकिन बच्चा कुएं में ही गिरा रह गया। फिर जेसीबी मशीन से किया गया रेस्क्यू। दिल्ली के शास्त्री पार्क में देर रात एक फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। आग रात 12:45 पर लगी। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को आग लगने की इस घटना की सूचना दी, जिसके बाद दमकल विभाग की 32 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तड़के सुबह 3 बजे आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह से फर्नीचर और हार्डवेयर की 250 दुकानें जल गई। जम्मू कश्मीर में शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। शोपिया जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। घटना शोपिया के हादीपाड़ा की है। मारे गए आतंकियों में एक 14 साल का नाबालिग भी बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश में आज यानी रविवार 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इस बीच कई राज्यों ने टीकों की कमी की शिकायतें की हैं, जिसका ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार ने सप्लाई भी तेज कर दी है। सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ न कुछ वायरल होता जा रहा है। अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो दिल जीत रहा है, जिसमें एक ट्रेन ड्राइवर ने पटरी पार कर रहे हाथी और उसके बच्चे की जान बचा ली। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद सभी लोग पायलट की तारीफ कर रहे हैं। इस पायलट की सूझबूझ से हाथी और उसके बच्चे को बचाया गया। इस सतर्कता की खबर सुर्खियां बटोर रही है। राज्य सरकार अब कोविड नियमों को तोड़ने वाले या फिर मास्क नहीं पहनने वाले पर सख्ती बरत रही है। दिल्ली में मास्क का नियम तोड़ने पर 2000 रुपए का चालान है। दिल्ली से सटे नोएडा में 100 रुपए जुर्माना लगाया जाता है। गाजियाबाद में 100 रुपए से लेकर 1000 तक का चालान का प्रावधान है। गुड़ग्राम में 500 रुपए का फाइन का प्रावधान है। दिल्ली गवर्नमेंट ने सख्ती करते हुए कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। DDMA के द्वारा जारी आदेश के मुताबिक नई गाइडलाइन तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 30 अप्रैल तक जारी रहेगी। राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आदेश के अनुसार मेट्रो, DTC और क्लस्टर बसें 50% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी है। गुजरात में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लॉकडाउन का डर सताने लगा है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों ने अपने परिवारों के साथ सूरत और अहमदाबाद छोड़ना शुरू कर दिया। गुजरात के ये दोनों शहर कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित हैं। ट्रेनों में गुजरात से यूपी, बिहार आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण कहर बनकर टूटा है। इस बीच ही प्रदेश के जयप्रकाश अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा होने पर डॉक्टर योगेंद्र श्रीवास्तव ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए इस्तीफा सौंप दिया। परिवार वालों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मरीज की मौत के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा किया। कोविड टीकाकरण अभियान की रफ्तार तेज करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। वहीं बढ़ती उम्र और बीमारियों की परवाह न करते हुए बुजुर्ग कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब भोपाल के बिलखो गांव की रहने वाली 106 साल की दादी ने वैक्सीन लगवाई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएगा आपके सामने फास्ट 15।